یہ سب کیا ہے؟ جیسے ہی اس نے کمرے میں قدم رکھا، کمرے کی حالت دیکھ کر اس کے پورے وجود میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ خوبصورت گلابوں کی پھولوں سے سجا ہوا یہ کمرہ، اس پر جگہ جگہ جل رہی موم بتیاں کمرہ تو خوابناک بنا رہی تھی۔ ہلکے ہلکے پھولوں اور پرفیوم کی خوشبو کسی مضبوط اصحاب والا قومی سرشاری میں ڈبو سکتی تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی، اس کے پیچھے دامل بھی داخل ہوا۔ ایک نظر اس نے کمرے پر ڈالی تو لبوں پر بے ضابطہ مسکراہٹ پھیل چکی تھی، جبکہ نشا نے پلٹ کر دامل کو گھور کر دیکھا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس کمرے میں ایسا کیوں سجایا گیا ہے؟ ابھی وہ یہ سب کچھ بول ہی رہی تھی جب دامل نے بے قابو ہو کر اپنا ہاتھ اس کی کمر پر رکھا اور کھینچ کر اسے قریب کر کے دوسرے ہاتھ کی انگلیاں اس کے حسین سراپے پر پھیرنے لگا اور بولا، کیوں تمہیں یہ ڈیکوریشن پسند نہیں؟ یہ خوبصورت سہاگرات جیسا سجا ہوا کمرہ ہو اور تم جیسی حسین بیوی پہلو میں ہو تو کیا تم نہیں جانتی آنے والے لمحات میں کیا ہونے والا ہے؟ وہ اس کی گرفت نے تل ملا اور ٹھیک کیا ہو گیا ہے آج دامل؟ ایک جھٹکے سے وہ خود کو اس کی سے جدا کرتی ہوئی آنکھوں میں خوف طاری تھا۔ دامل کو دیکھ کر کہنے لگی، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں سر؟ آپ جانتے ہیں نا میرا اور آپ کا رشتہ کیا ہے؟ وہ اپنی شرٹ کے بٹن ساتھ ساتھ کھول رہا تھا، ٹائی اتار کر ایک طرف پھینکتا، تینے الٹاتا، کہنے لگا کہ ہاں بیوی ہو تم میری، میاں بیوی کے درمیان یہی سب کچھ ہوتا ہے ہر رات۔ حسین وہ جیسے جیسے اس کے قریب آ رہا تھا قدم پیچھے اٹھا رہی تھی، کپ کپاتے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، سر آپ جانتے ہیں آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ پلیز مجھے اور مت ڈرائیے، اگر یہ کوئی مذاق ہے نا تو دیکھیں میں رو دوں گی۔ آپ نے میرے ساتھ ہی شادی اپنی دادی کی خاطر کی تھی نا؟ دیکھیں میں آپ کی دادی کا بہت خیال رکھ رہی ہوں، ہر ذمہ داری نبھا رہی ہوں۔ آپ بول رہے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ کانٹریکٹ میں لکھا تھا آپ میرے قریب نہیں آئیں گے، نہ ہی مجھے چھونے کی کوشش کریں گے، میں ویسے ہی رہوں گی جیسے شادی سے پہلے تھی۔ 19 سالہ نشا کانپ چکی تھی، پیچھے دیوار تھی اور وہ دیوار سے جا لگی، جبکہ دامن چلتا ہوا اس کے بے حد قریب آ گیا، اس کی ٹھوڑی پر اپنی انگلیاں ٹکا کر چہرہ اوپر کو کیا، یہاں تک کہ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے میں شامل ہونے لگی۔ دامن بے خودی کے انداز میں کہنے لگا، ہاں لیکن دادی کے ہی تو خواہش کو تکمیل تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ دادی جانتی تو وہ مجھے دادی سے کتنی محبت ہے، اور دادی چاہتی ہیں کہ میں انہیں وارث دوں، اور وائرس ڈائریکٹ ڈاؤن لوڈ تو نہیں ہوگا، تمہیں تمہارے ساتھ وہ سب کچھ کرنا ہوگا جس کے بعد تم کنواری نہیں رہو گی۔ نشا ہڑبڑاتے ہوئے خود کو دامل کی گرفت سے چھڑوانے لگی، نہیں آپ ایسا کچھ نہیں کریں گی، لیکن اگلے ہی پل دامل نے اپنا ہاتھ اس کی گردن پر رکھا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے شرٹ کو ایک ہی جھٹکے سے، مس دانیہ ایسی لڑکیاں اٹھا کر آپ میرے سامنے بھیج رہی ہیں؟ مجھے اپنے لیے پرسنل سیکریٹری چاہیے جو تجربہ کار ہو، میچور ہو۔ آپ جو لڑکیاں بھیج رہی ہیں دیکھ رہی ہیں آپ ان کا حلیہ کیسا ہے؟ ان کا دامن خانزادہ چلایا تو مس دانیہ بھی تھوڑی ہڑبڑا سی گئی، ان کے ہاتھ میں موجود 3 مزید سی بھی گرتے گرتے بچی کہنے لگے، آئی ایم سوری سر، لیکن آپ کی کمپنی میں دامن خانزادہ کی پرسنل سیکریٹری بننے کے لیے جتنی بھی لڑکیاں آئی ہیں ان میں سے کچھ تو میں نے خود ہی ریجیکٹ کر دی، یہ ساری وہ ہیں جو اس سے پہلے یہ جاب کر چکی ہیں اور انہیں کافی سالوں کا ایکسپیرینس ہے۔ مس دانیہ اپنی طرف سے وضاحت کرنے لگی، لیکن دامن خانزادہ کو تو ایسی لڑکی چاہیے تھی جو نہ صرف تجربہ کار پڑھی لکھی ہو بلکہ حسن کی دولت سے بھی مالا مال ہو۔ وہ شروع سے ہی لڑکیوں کا حسن کا دل دادا تھا، اسے حسین لڑکیاں خوبصورت سراپے بے حد حسین لگتے تھے۔ اس سے پہلے دامن خانزادہ نے جو سیکریٹری رکھی تھی وہ بے تحاشا خوبصورت تھی۔ اکثر دامن خانزادہ اس کے ساتھ تنہائی کے لمحات میں بے واقعہ کر چکا تھا، لیکن اس لڑکی نے اس سے زائد حدود تجاوز کرنے نہیں دی تھی۔ گزشتہ ہفتے دامن خانزادہ نے اسے اپنے سامنے سگریٹ کے کش لگاتے ہوئے اپنی پرسنل سیکریٹری کو اپنے پاس بلایا۔ روم لاک کرنے کے بعد وہ اپنا ہاتھ اس کی کمر پر سہلانے لگا تو ایک جھٹکے سے دور ہوئی تھی۔ دامن خانزادہ کے ماتھے پر بل پڑے تھے، کہنے لگا، یہ کیا طریقہ ہے؟ یہاں آؤ، تم یہ حق نہیں رکھتی کہ میرے چھونے پر یوں اچھل کر مجھ سے دور ہو جاؤ۔ دامن خانزادہ ماتھے پر بل ڈال کر کہنے لگا تو اگلے پل تھوڑی ہچکچا کر کہنے لگی، نہیں سر پلیز، آپ نے یہ سب کچھ کرنا ہے تو لاہور شہر ایسی لڑکیوں سے بھرا پڑا ہے، آپ کسی کو بھی پیسے دے کر یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن پلیز میری شادی ہونے والی ہے اور میں نہیں چاہتی کہ اب اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کے ساتھ، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ بات کرتے ہوئے سیکریٹری کے چہرے پر لالی سی آئی تھی۔ جیسے ہی دامن خانزادہ کو سنائی دیا تو اس کے ماتھے پر بڑھ پڑ چکے تھے، اسی لیے یہ بات قابل قبول ہی نہیں تھی۔ وہیں کھڑے کھڑے اس لڑکی کو فائر کر چکا تھا۔ وہ بیچاری کہہ رہی تھی کہ سر میری غلطی کیا ہے؟ پلیز مجھے نوکری سے مت نکالیں، میں اپنا کام وقت پر کر رہی ہوں، مگر وہ سیلری اس کے منہ پر مار کر کہہ چکا تھا کہ چلی جاؤ یہاں سے، مجھے تم جیسی لڑکی کو اپنے آفس میں نہیں رکھنا جو میرے ہوتے ہوئے یہ سوچ رہی ہے کہ کسی اور کے ساتھ شادی کرے گی۔ اگر تم مزید میرے
दिल को लुभाती तो मैं तुमसे शादी भी कर लेता, लेकिन अब नहीं। दामिल खानजादा अच्छी खासी सुनाकर वहाँ से चलता कर चुका था। अब नई पर्सनल सेक्रेटरी के लिए इंटरव्यू शुरू कर दिए गए थे। अब तक कोई 50 लड़कियां इसके सामने आ चुकी थी, लेकिन कोई भी इसे पसंद नहीं आई थी। जिस तरह की वो लड़की पसंद करना चाहता था वैसी इसे मिल ही नहीं रही थी। अभी भी रिसेप्शनिस्ट ने लिस्ट झिझकते हुए अपने हाथ में मौजूद 3 सीवीज की जानिब बढ़ाई तो फाइल्स में से अभी सिर्फ 2 लड़कियों की ही सीवी देखकर दामिल खानजादा इन्हें फर्श पर पटक चुका था। जैसे ही इन्हें पेपर्स को फर्श पर पटका तो एक पेपर निकलकर बाहर गिरा जिस पर एक लड़की की तस्वीर लगी हुई थी। जैसे ही दामिल खानजादा चिल्लाकर इसे मजीद सुनाता, इसकी नज़र इस शक्ल पर ठहर सी गई। खूबसूरत, इंतहाई पुरकशिश चेहरे की हामिल वो लड़की जिसे देखकर जैसे एक पल को महबूब सा हो चुका था। मिस दानिया घबराते हुए फौरन वो सारे पेपर उठाना शुरू कर दिए। जैसे ही इस लड़की के पेपर्स पर लगी हुई तस्वीर फाइल गायब हुई तो वो इश्क की दुनिया में वापस लौटा। कहने लगा, रुको, ये सीवी दिखाओ मुझे। जिस पर अभी इस लड़की की तस्वीर थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहे। मिस दानिया ने ये सुना तो हड़बड़ाते हुए कहने लगी, सर आप छोड़ें इसे, ये पता नहीं कैसे आ गई। इसकी सीवी तो मैंने डस्टबिन में फेंकनी थी, पता नहीं कहाँ से मुंह उठाकर आ गई थी। लेकिन नामिल खानजादा ने गहरे लो नज़रों से इसे देखा, चिल्लाकर कहने लगा, इस ऑफिस की सीईओ तुम हो या मैं हूँ? मैं कह रहा हूँ मुझे सीवी दिखाओ। और वो चिल्लाया तो इसने सीवी फ़ौरन इसके हवाले कर दी। उम्र 19 साल, तजर्बा ज़ीरो था, पढ़ाई भी कुछ खास न थी। सिंपल बीए के साथ कंप्यूटर कोर्स करके वो यहाँ इसकी पर्सनल सेक्रेटरी बनने के लिए सीवी जमा कराने आई थी। अगले ही पल दामिल ने सीवी इसे वापस किया और कहने लगा, इस लड़की को कॉल करके बुलाओ। मिस दानिया ये देखकर हैरान थी। वो लड़की तो पिछले 3 रोज से रोज़ाना सुबह से शाम तक यहाँ आकर बैठी रहती थी। इसका नंबर ही नहीं आ रहा था। जानबूझकर मिस दानिया ने इसकी सीवी नहीं भिजवाई थी, क्योंकि इस जैसी लड़की तो पहली नज़र में ही रिजेक्ट कर दी जाती है। मिस दानिया भी ये समझ ना पाई कि आखिर सर ने इस लड़की में ऐसा क्या देखा है जो पहली नज़र में ही देखकर इसे नौकरी के लिए रख दिया। वहीं दूसरी जानिब वो थकी हारी मरे बड़े कदमों के साथ घर में दाखिल हुई। जैसे ही घर में दाखिल हुई, सहन में रखी हुई चारपाई पर इसका बाप बैठा हुक्का पी रहा था। बेटी को यूं मुरझाए हुए कदमों के साथ आता देखा तो माथे पर बल पड़ गए। तभी कमरे से खांसने की आवाज़ भी गूंजी थी। शक्ल तो ऐसी बना रखी है तूने जैसे आसमान सर पर टूट पड़ा हो। आज भी वैसे ही तासुरात लिए घर में दाखिल हुई है। क्या बना है तेरी नौकरी का? बाप के मुंह से ये अल्फाज सुनकर जल्दी से अपनी चादर ठीक करती इसने अपने आंसुओं को आंखों के बजाय हलक में ही उतारा था। चलती हुई बाप के पास आई, कहने लगी, अब्बा आज भी सारा दिन बैठ बैठ कर गुजारा, लेकिन मुझे लगता है शायद मेरी नौकरी नहीं लगेगी। इतना सुनना था कि वो शख्स आग बगोला हो गया। गुस्से से कहने लगा, अच्छा नौकरी नहीं लगी और तेरी माँ जो खांस खांस कर मेरा जीना हराम कर चुकी है, इसका इलाज कहाँ से होगा? मेरा दिमाग घूम चुका है। तुम माँ बेटियों की वजह से मुझसे तुम्हारे खर्चे नहीं उठाए जाते। आए रोज़ की दवाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं। अब मैं क्या खुद को बेचकर इसका इलाज करवाता फिरूं? ईशा ने जब बाप की ये बात सुनी तो चुपाड़ अंदाज में कहने लगी, अब्बा इससे पहले भी तो मैं और माँ ने अपना और माँ का खर्चा खुद ही उठाती आ रही हूँ। आपने तो हम पर 1 रुपया नहीं लगाया। आगे भी अपना और अपनी माँ का खर्चा उठा लूँगी। ज़बान लड़ाती है बदतमीज़, ये कहकर रफ़ाकत ने एक ज़ोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर दे मारा था। अपना तवाज़ुन बरकरार ना रखते हुए वो ज़मीन पर गिर चुकी थी। पाँव का एक घूंसा इसके पेट में मार कर कहने लगा, दोनों दोबारा मेरे सामने ज़बान चलाई ना तो हड्डी तोड़ के हाथ में दे दूंगा। किस लिए उठाता? मैं तेरे खर्चे क्यों उठाता? तू कौन सा मेरी सगी औलाद है? तेरी माँ तुझे पीछे से उठाकर लाई थी, पता नहीं कहाँ कहाँ मुँह काला करती रही। ये तो मैं था जो तेरी इस लावारिस माँ को ब्याह कर अपने घर ले आया कि 2 वक्त का खाना बनाकर मुंह के आगे रखेगी। हो सका तो एक इद्दत बेटा पैदा कर देगी, मगर थी ही कल मुही। जब से आई है बिस्तर पकड़ कर लेटती है और खर्च पर खर्च करवाए जा रही है। वो इससे उससे और इसकी माँ को गालियाँ देते हुए वहाँ से बाहर जा चुका था। निशा अपने पेट पकड़े फूट फूट कर रोने लगी। निशा के बाप की वफात के बाद इसकी माँ ने दूसरी शादी रफाकत से की थी। वो सिर्फ 5 साल की थी जब इस घर में ब्याह कर आई थी। शुरू शुरू में तो रफाकत का रवैया ठीक था, मगर धीरे धीरे काम चोरी और इसकी रोटियां तोड़ने की ऐसी आदत पड़ी कि घर में बैठ कर रह गया। निशा की माँ फरजाना कपड़े सिलाई करती थी, सिलाई बुनाई अच्छे से कर लेती थी, इसीलिए मोहल्ले की औरतें इसके पास आ जाया करती, पैसे भी अच्छे दिया करती। अब तक इन दोनों का ऐसे गुजारा होता आया था, लेकिन इसके बावजूद रफाकत मारने का और ताना देने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता था। मुश्किल वो सिंपल बीए के साथ कंप्यूटर कोर्स ही कर पाई थी।
माँ को सांस की बीमारी लग चुकी थी, इलाज के लिए अच्छे खासे पैसे दरकार थे। अगर इसकी माँ को कुछ हो जाता तो वो कहाँ जाती, ये सोचकर दर दर की ठोकरें खाती फिर रही थी। लेकिन अभी तक कहीं से भी इसे नौकरी का जवाब नहीं आया था। कमरे में जाकर इसने माँ को खाना खिलाया, इनके कपड़े तब्दील किए और फिर इनके पास ही बैठ चुकी थी। आंखों से मुसलसल आंसू बहकर तकिए को भिगो रहे थे। वो बिल्कुल अपनी माँ की हमशक्ल थी, उसकी दौलत से माला माल, बेहद हसीन, बड़ी बड़ी आंखें। कोई भी देखकर इसका गर्विदा हो जाता। जहाँ भी जाती भूखे भेड़िए इसकी इज्जत का शिकार करने के लिए बैठे होते। दामी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से पहले वह कई कंपनियों के मालिक से मिलने के लिए गई थी। इसने इसको नौकरी के लिए तो रख लिया था, मगर अगले पल की ऑफर की थी कि मिस निशा मलिक, मैं चाहता हूँ कि मेरी सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाए। मैं दिन कहूँ तो दिन कहो, रात कहूँ तो रात मेरे करीब मिले। निशा हड़बड़ाते हुए कहने लगी, सर मैं समझी नहीं, ड्यूटी का वक्त तो 8 घंटे होता है और इन 8 घंटों में मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। लेकिन वो मुस्कुराकर कहने लगा, आपको आपकी तनख्वाह आपकी सैलरी से डबल भी मिलेगी अगर आप हर वीकेंड पर मेरे साथ फार्म हाउस चलेंगी, मेरा और मेरे दोस्तों का दिल लगवाएंगी। यकीन जाने आपको मालामाल कर दूंगा। जिस बेबाक नज़र से इसने इस निशा को देखा था, निशा ने चादर ओढ़ रखी थी, फिर इसे इसकी नज़रें अपने वजूद के आर पार महसूस हुई। अभी ये सब कुछ सोच ही रही थी कि जब इसके फ़ोन पर कॉल आने लगी। ये मिस दानिया ही थी जो कह रही थी कि आपको कल बॉस ने इंटरव्यू के लिए बुलाया है। ये सुनकर इसकी खुशी की इंतहा ना रही। रोते हुए अपनी माँ के गले लग गई, मुझे लगता है हमारी किस्मत बदलने वाली है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं कल ही ऑफिस आ जाऊंगी। अगर हो सका तो एडवांस सैलरी भी ले लूँगी और फिर देखिएगा आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, हमारे बुरे दिन चट जाएंगे। इसकी माँ भी खांसते हुए गहरे गहरे सांस लेती अपनी बेटी को दुआ देने लगी। अगले रोज वो जब ऑफिस पहुंची तो इसे बाकी सबकी लिस्ट में सबसे पहले अंदर आने को कहा गया था। बाकी जितनी भी लड़कियां मौजूद थी इन सबको वहां से भेज दिया गया। जैसे ही निशा ने अंदर कदम रखा तो सामने बैठे 28 साल दामिन को देखकर इसके चेहरे पर खुशगवार हैरत फैल चुकी थी। कहने लगा, आइए आइए बैठिए। वो हिचकिचाते हुए बैठकर फौरन सीवियां आगे बढ़ाने लगी, लेकिन वो हाथ के इशारे से इसे रोक चुका था। कहने लगा, बताएं क्या कर लेती हैं आप। इसने जो जो कुछ सीखा था वो सब कुछ बताने लगी और वो तो इसके उसमें खो चुका था। बिल्कुल यही लड़की तो इसे चाहिए थी। मुस्कुरा कर कहने लगा, बाकी सब तो ठीक है, मैं आपको यहाँ पर जॉब करने के लिए 80,000 सैलरी भी दूंगा। 80,000 का सुनकर दिशा की आंखें कुल्ले की कुल्ली रह चुकी थी। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई, जिसे देखकर दामिल कहने लगा कि आपको ये चादर उतारनी होगी। आप इस चादर में लिपटी बैठकर यहाँ पर काम काज नहीं कर सकती। वो हिचकिचाते हुए कहने लगी, मैं शुरू से ही ऐसे रहकर काम करती हूँ। लेकिन दामिल कहने लगा कि नहीं, आप के लिए मैं अपने ऑफिस के रूल्स नहीं बदल सकता। जॉब में अच्छी थी और दामिल इसे पहली नज़र में ही मुतासिर कर चुका था, इसीलिए इसने हामी भर ली। अगले रोज़ जब वो आई तो दामिल के ऑफिस में ही इसके लिए एक तरफ टेबल और चेयर रख दी गई थी, जहाँ पर कुछ फाइल्स और कंप्यूटर पड़ा था। वहीं पर बैठ कर इसने काम करना था। दामिल इस लड़की को अपने सामने रखना चाहता था। पहली नज़र में इसे देखकर इसके दिल की धड़कनें रुक गई थी। ये लड़की तो सादगी में भी क़यामत ढा रही थी। दामिल खानदादा ने आज से पहले किसी लड़की में इस कदर दिलचस्पी नहीं ली थी। जानबूझकर इसके सारे काम करते हुए कभी इसके कंधे पर हाथ रख देता तो कभी इसकी कमर पर हाथ सिखाने के बहाने वो इसके करीब आ जाता है। इसके बदन से उठने वाली खुशबू इसे बेचैन सी कर रही थी। इसका बस नहीं चल रहा था कि बस अभी यहीं पर इसे काबू करके अपने जज्बात इस पर लुटाना शुरू कर दे। लेकिन वो एक सही मौके की इंतज़ार में था। सारा दिन इस लड़की के साथ रहकर इसके हुस्न से अपनी आंखें ठंडी करने के बाद जब वो घर गया तो सामने ही दालान में इसकी दादी बिपरी बैठी थी। मुस्कुराता हुआ गाड़ी से उतरा और अपने बड़े से महलनुमा घर के दालान में दाखिल होकर सबसे पहले इसने अपनी दादी को सीने से लगाया। लेकिन दादी ने एक झटके से इसे खुद से दूर किया। क्या दूर रहो मुझसे, मेरा तुमसे कोई रिश्ता है ही नहीं, तुम मेरे पोते हो, दोबारा मुझे दादी मत कहना। दमिल खानजादा ने अपनी दादी को यूं बिखरा हुआ देखा तो परेशान सा हुआ। कहने लगा, दादी जान क्या हो गया है आपको, इस कदर गुस्से में क्यों है? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? बताएं, किसने कुछ कहा है आपसे? गुस्से वो गुस्से से कहने लगी, किसी ने कुछ नहीं कहा मुझसे, तुम ही सारी कसर पूरी करने के लिए मौजूद हो। आइंदा के बाद मुझे दादी मत बुलाना। अगर मैं तुम्हारी दादी होती तो मेरी बात कब की मान लेते। वो जानता था दादी इससे क्या मनवाना चाहती हैं। एक गहरी सांस खारिज करके इसके पास बैठा और कहने लगा, दादी ये शादी वादी के चक्कर मेरे बस की नहीं है, ना ही मैं शादी करके अपना जीना हराम करना चाहता हूँ। मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूँ, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ।
मुझे आज तक ऐसी लड़की नहीं मिली जो इस कदर मुतासिर कर सकी कि मैं इससे शादी कर सकूं। दादी ने ये सुना दादी ने ये सुना तो कहने लगी, हाँ ठीक है, तेरी पसंद नापसंद के चक्करों में मैं कब्र में उतर जाऊंगी। दादी की ये बात सुनकर वो तड़प सा गया, कहने लगा, आपने आज ये बात कर दिया, आइंदा के बाद ये बात मत कीजिएगा। आप जानती हैं मैं आपसे किस कदर मोहब्बत करता हूँ। मामा पापा के बाद आपने मुझे पाला है और मैंने सब कुछ आपको माना है। वो कहने लगी, अच्छा अगर इतनी मोहब्बत है तो मेरी बात को रद्द नहीं कर सकते तो चलो शादी करो। मुझे अगले 15 दिनों के अंदर अंदर तुम्हारी बीवी इस घर में चाहिए। मैं तुम्हारी औलाद को अपने हाथों से खिलाना चाहती हूँ। इस खामोश घर में रहकर मेरा दम घुटता है। अपनी दादी की ओर रोता हुआ बर्दाश्त नहीं कर सकता था। एक तरफ दादी की बात मानना भी चाहता था और दूसरी तरफ इसे किसी लड़के को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना भी आसान नहीं लगता था। इसने कुछ सोचा और फिर कहने लगा, ठीक है मैं शादी तो कर लूँगा लेकिन लड़की मेरी पसंद की होगी। बोली, मंजूर है? कहने लगी कि हाँ मंजूर है। मुझे पता है कि मेरा बेटा कभी भी किसी ऐसी लड़की को घर की बहू नहीं बनाएगा जो हमारी रीत रवायत को मानने से इनकार करे। दादी से बात करके वो कमरे में आ चुका था, लेकिन कमरे में आने के बाद इसके जहन में यही बातें गर्दिश कर रही थी कि कुछ सोचते हुए इसने मुस्कुराकर अपने जहन में निशा का अक्स बनाया। अगले रोज़ जब वो ऑफिस गया तो मामूल के मुताबिक सब कुछ मौजूद था। सभी एम्प्लॉयज़ काम में मसरूफ थे। इसी दौरान इसकी नज़र निशा पर पड़ी। एक फाइल्स को खोले देख रही थी। मुस्कुराता हुआ इसके करीब गया और अगले पल इस अपना चेहरा इसके कान के करीब ले गया। जैसे इसने दामिर खान की गर्म सांस अपनी गर्दन पर महसूस की, हड़बड़ा सी गई। कहने लगी, सर सर आप। वो मुस्कुरा कर कहने लगा, हाँ डरो नहीं। वो फ़ौरन उठ खड़ी हुई हो चुकी थी। कहने लगी, सर आप मेरे इतने करीब क्यों खड़े हैं? मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। वो कहने लगा, अच्छा नहीं लगता तो अच्छा महसूस करना शुरू कर दो क्योंकि मैं तुम्हें बहुत जल्द अपनी बीवी बनाने वाला हूँ। वो एक ही सांस में सब कुछ कह चुका था, जबकि निशा यूं थी जैसे खाटो तो लहू नहीं ना। उछल कर 2 कदम दूर हुई और कहने लगी, ये क्या कह रही हैं? अब वो हंसा और कहने लगा, मेरी दादी चाहती है मैं शादी कर लूँ और इनके लिए एक अदद बहू ले आऊँ। मैं शादी करने के हक में नहीं हूँ, ना ही मुझे लड़कियों में इस कदर दिलचस्पी है कि मैं पूरी ज़िंदगी एक ही लड़की को देख कर गुजार दूँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, बगैर शादी के मेरे साथ रहो, फिर कुछ अर्से बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वो बुतमनी सर दामिल को देख रही थी। कहने लगी, आपके लिए शादी ब्याह कोई गुड्डा गुड्डी का खेल या मजाक होगा, लेकिन हम मिडिल क्लास लोगों के लिए ये रिश्ता बड़े मुकद्दस समझे जाते हैं, कोई खेल तमाशा नहीं। ना ही मैं इस कद्दर गिरी पड़ी हूँ कि आपके साथ बगैर निकाह के आपकी दादी की खुशी के लिए रहना शुरू कर दूँ। सॉरी सॉरी लेकिन मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती। दामिल ने ज़यू नफ़ी करते देखा तो जलकर कहने लगा, मैं तुम्हें तुम्हारी सैलरी से डबल सैलरी दूंगा। अगर तुम मेरे साथ शादी का ड्रामा करोगी तो मैं तुम्हें रोज़ाना इतने पैसे दूंगा जितना तुम महाना इस ऑफिस में तनख्वाह के तौर पर कमाओगी। ये सुनकर इसकी आंखें मज़ीद खुल चुकी थी, लेकिन साथ ही माथे पर बर्फ पड़े। गुस्से से कहने लगी, शर्म आनी चाहिए आपको। मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं करने वाली। सभी समझे आप। मैं तो आपको शरीफ और अच्छा ख़ानदानी इंसान समझ रही थी, लेकिन मुझे क्या खबर थी आप भी बाकी सबकी तरह निकलेंगे। मुझे आपके ऑफिस में काम नहीं करना। ये कहकर वो वहाँ से जा चुकी थी और दामिल खानज़ादा इस लड़की की इतनी हिम्मत पर हैरान था। इसके लिए इस लड़की की मालूमात निकालवाना कोई मुश्किल काम नहीं था। इसकी सीवी अभी भी इसके पास ही थी। चंद घंटे बाद ही तमाम तर मालूमात इसके हाथ में थी। मुस्कुराकर कहने लगा, निशा इतनी आसानी से तो दामिन तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। जब तक तुम्हारे वजूद से तस्कीन हासिल ना कर ले तब तक तुम्हें छोड़ना मेरे लिए आसान नहीं है। बहुत हुस्न के शाहकार देखे, लेकिन तुम्हें मैं अपने बिस्तर तक लाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। वो अजीब कश्मकश में मुब्तला होकर ये सब कुछ कह रहा था। वो जल्दी घर वापस लौटी तो एक बार फिर इसका बाप माथे पर बल डाल चुका था। कहने लगा, आज क्या हुआ? ये नौकरी भी छोड़कर आ गई होगी। यकीनन एक बार फिर किसी से मुंह जोर होकर आ रही होगी। मगर वो रोती हुई सीधा अपनी माँ के पास चली गई, जिनकी तबीयत 2 दिन से ही संभलना शुरू हुई थी। अपनी माँ के गले लगकर फुट फुट कर रोने लगी। कहने लगी कि हर कोई औरत को अपनी दस्तीन का सामान क्यों समझता है? इन अमीर लोगों को क्या हमारी इज्जत का कोई ख्याल नहीं होता? इसे क्या समझते हैं कि पैसों की जोर पर सब कुछ खरीद लेंगे? वो रोते हुए अपनी माँ से ये बात कर रही थी तब दरवाजे पर दस्तक हुई। रफाकत ने दरवाज़ा खोला तो देखते ही देखते 7 मुलाजिम हाथों में 7 किस्म के शगुन के थाल लिए घर में दाखिल हुए थे। घर के बाहर एक कीमती गाड़ी खड़ी थी और इस सब में से आखिर में दामिल अंदर दाखिल हुआ। मुस्कुरा कर इसने रफाकत को गले से लगाया। इतने बड़े बिजनेसमैन को अपने घर की चौखट पर देखकर वो हैरान था कि इसकी टांगें काँप रही थी। हिचकिचाते हुए कहने लगा, साहब जी आप जैसा इतना अमीर कबीर इंसान हमारे घर के दरवाजे पर क्या कर रहा है? सब खैरियत तो है ना जी? से तो समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या बात करे और कैसे करे। दामिल खान मुस्कुरा कर कहने लगा,
साहब जी मत बुलाइए, मैं तो आपका होने वाला दामाद बनना चाहता हूँ, आइए बैठकर बात करते हैं। वो चलता हुआ आकर इसके सामने मेहमान खाने में बैठ चुका था और फिर अगले पल मुस्कुरा कर कहने लगा कि निशा आपकी बेटी है ना? वो हिचकिचाते हुए कहने लगा कि हाँ हाँ बिल्कुल, निशा मेरी बेटी है। नाबिल कहने लगा कि मैं आपकी बेटी के साथ शादी करना चाहता हूँ और फिक्र मत कीजिएगा, मैं माहाना आपको इतनी रकम ज़रूर दे दिया करूँगा जिससे आपके घर का खर्च चलता रहे, आपके कारोबार भी लगवा कर दूंगा, लेकिन मुझे आपकी बेटी को अपने घर की इज्जत बनाना है। जहाँ एक जानिब वो दोनों ये बात कर रहे थे, वहीं अपने घर में गूंजती दामिन खानजादा की आवाज़ को सुनकर निशा तो बिफर चुकी थी। ना जाने वो इसके सौतेले बाप से क्या कुछ कह रहा था। वो जल्दी से उठकर मेहमान खाने तक आई, जहाँ पर इसका बाप बैठा मुस्कुराकर दामिन खानजादा से बात कर रहा था। वो कहने लगा कि बेटी देख बेटी, मैं कहता हूँ ना, तेरी किस्मत एक रोज़ ज़रूर चमकेगी। देख जितने बड़े साहब जी थे ना रिश्ता मांगने के लिए आए थे, तुम तो ऐश करोगी ऐश। निशा के चेहरे पर नागवारी उमड़ आई। वो कहने लगी कि ये क्या ड्रामा है, आपको किस लिए आए हैं आप यहाँ पर? मैं नहीं करूँगी आपके साथ शादी, यकीनन इसके पीछे आपका कोई मकसद छुपा है। अब्बा इन्हें निकालें यहाँ से। लेकिन वो रफाकत था, लालची पैसों का भूखा, उल्टा इसे डांट कर कहने लगा, जा यहाँ से, जब मर्द बात कर रहे हो तो औरत को बोलने का कोई हक नहीं होता। रफ़ाकत ने तो इसका रिश्ता पक्का कर दिया, यहाँ तक इसे कह दिया कि इसी ज़िम्मे को आए और अपनी अमानत आकर ले जाए। निशा तो सर पकड़ कर बैठ चुकी थी। अगर इसकी जगह कोई और लड़की होती तो यकीनन इतने अमीर बिजनेसमैन के साथ शादी का सुनकर खुशी से फूल ही ना समाती। लेकिन सर दामिल का इस तरह की बात करने से कुछ हजम नहीं हुआ। अगले रोज़ वो सुबह सुबह खाल करके दामिल के सामने मिलने के लिए जा चुकी थी। वो तो ऑफिस ही गई थी, धड़ल्ले से ऑफिस का दरवाज़ा खोलकर इसके ज़ोर से हाथ मेज़ पर पटका कहने लगी, चाहते क्या है आप? वो आगे से अब इंतहाई नरमी से कहने लगा, तुम्हें अपनी इज्जत बनाना चाहता हूँ। वो कहने लगी कि झूठ मत बोलो, आप मुझे सच सच बताएं क्यों? क्योंकि मैं कभी भी आपके हाथों खुद को इस्तेमाल होने नहीं दूंगी। मैं कोई सामान नहीं हूँ जिसे आप पैसे देकर खरीद लेंगे। मेरे सुतेले बाप को तो आप अपने काबू में कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं। दामिल ने गहरी सांस खारिज की और फिर चलता हुआ इसके करीब आ गया। कहने लगा कि मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना चाहता हूँ। मेरे लिए ये लड़कियाँ और ये सब कुछ सिर्फ एक एडवेंचर है, खेल है, इससे ज़ायद और कुछ भी नहीं। मैं चाहता हूँ कि मेरी एक अदद कॉन्ट्रैक्ट बीवी हो जो मेरी दादी का ख्याल रख सके, इनकी खिदमत कर सके, इनका ख्याल रख सके और इनका अकेलापन दूर कर सके। मुझे तुमसे बेहतर कोई और लड़की नहीं मिली। अगर तुम ऐसे नहीं चल सकती तो निकाह करके चलो। वो इसके काफ़ी करीब आकर ये सब बातें कर रहा था। पैसों की ज़रूरत तो इसे भी थी, अपनी माँ का वो अच्छे से इलाज करवाना चाहती थी और बस किसी भी तरह अपने बाप के तानों तशरों से अपनी माँ को अलग रखना चाहती थी। एक गहरी सांस खारिज करके कहने लगी, ठीक है मैं आपके साथ निकाह करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। वो कहने लगा, कैसी ज़बरदस्ती? निशा कहने लगी, मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी कॉन्ट्रैक्ट में लाई गई बीवी हूँ। आप मेरे करीब नहीं आएंगे, बिला वजह मुझे छूने की कोशिश नहीं करेंगे और ना ही बीवियों वाला रवैया अख्तियार करेंगे। मैं आपका कोई भी काम नहीं करने वाली, सिर्फ और सिर्फ आपकी दादी का ख्याल रखूंगी। ये सुनकर दामिल मुस्कुराया, दिल ही दिल में कहने लगा, तुम एक बार मुझ तक आओ, फिर देखूंगा कैसे मेरी दस्तरस से बाहर जाती हूँ। जब तक मेरा दिल ना भरा तब तक तुम्हें जाने कौन देगा। वो अंदर ही अंदर मुस्कुराया और कहने लगा, हाँ बेफिक्र रहो, ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, तुम्हारी हर बात मानी जाएगी। इस जुम्मे को इसका निकाह था। दादी बहुत ज़्यादा खुश थी। सादगी के साथ चंद लोगों की मौजूदगी में इसका निकाह आमिर खानजादा से हो चुका था। इसके बाप को इस बात से ज़्यादा इन पैसों की खुशी थी जो बदले में इन्हें दामिल ने दिए थे। वो अपनी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। इसकी माँ भी इसे ढेरों ढेर दुआएं देने लगी। रुखसत होकर दामिल के साथ जब इसके घर में दाखिल हुई तो एक पल को इसकी आंखें इस घर को देखकर चंतिया आ चुकी थी। दादी ने इसे अपने सीने से लगाकर व्हील चेयर पर बैठी थी, कहने लगी, बस बेटा देखो, अब तुम इस घर में आ चुकी हो ना, देखना ये घर किस कदर खुशियों से भर जाएगा। मेरी तो यही दुआ है, खुदा तुम लोगों को हमेशा खुश रखे और बहुत जल्द मेरी गोद में दामिल के बच्चे मौजूद हों। ये सुनकर वो थोड़ी हिचकिचाई थी। बजाय कमरे में जाने के वो दादी के साथ वहीं पर बैठ गई। दादी बार बार इसके सदके वारी जाती, कितनी खूबसूरत है मेरे दामिल की पसंद, ऐसी लड़की तो मैं इसके लिए भी नहीं ढूंढ सकती थी जितनी प्यारी इसने खुद ढूंढ ली है। वहाँ पर दादी बैठी काफ़ी देर बातें करती रही। दादी का रवैया बहुत अच्छा था। वो दादी की मोहब्बत में माँ की मोहब्बत तलाश करने लगी। रात के 11 बज गए। दादी ने कहा, बेटा जाओ, तुम्हारे शौहर कमरे में इंतज़ार कर रहा है। मेरा नाबिल बहुत अच्छा है, तुम्हें खुश रखेगा और अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करो। वो ढके छुपे अल्फाज में ये सब कह रही थी। वो धड़कते दिल के साथ इसके कमरे से बाहर आई और बार बार इसी कमरे की तरफ बढ़ते और फिर वहीं रुक गई।
اس کے دل کو ہلکا سا دھچکا ہوا، یہ سوچنے کے بجائے مجھے کیا کرنا چاہیے، اتنا بڑا گھر ہے، اتنے زیادہ کمرے ہیں، کہیں نہ کہیں رات گزارنے کے لیے کوئی کمرہ مل ہی جائے گا۔ لیکن یہ سوچتے ہوئے وہ جس بھی کمرے کو ہاتھ لگاتی وہ لاکھ تھا۔ آخر کار اس نے لاؤنج میں ہی رکھے ہوئے صوفے پر جا کر سونے کا پلان بنایا۔ روہی سے صوفے پر لیٹے ہوئے کچھ دیر ہوئی تھی کہ جب اسے اپنے قریب کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ گلا پل گرم سانس سے اپنے چہرے پر محسوس کر کے وہ ہڑبڑا کر اٹھی، اس سے پہلے کہ وہ ایک چیخ اس کے حلق سے نکلتی۔ سامنے دامل کو دیکھ کر اس کی سانس وہیں پر اٹک چکی تھی جو بغیر شرٹ کے سامنے کھڑا تھا۔ ماتھے پر بر ڈال کر کہنے لگا، یہ کیا طریقہ ہے؟ تم یہاں کیوں سو رہی ہو؟ تمہیں میں نے کہا تھا تم دادی سے ملنے کے بعد سیدھا کمرے میں آؤ گی۔ وہ تھوڑی ہڑبڑا گئی، کہنے لگی، نہیں میں آپ کے ساتھ اس کمرے میں نہیں رہوں گی۔ دامل کہنے لگا، تم نے اس کانٹریکٹ میں ایسا کچھ نہیں لکھا تھا، سمجھی؟ چلو کمرے میں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے آیا، ایک نظر اس کو دیکھ کر گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہنے لگا، یہاں رہنا ہے؟ وہ اس کے چہرے کے قریب اپنے ہاتھ لے جا کر تھوڑی دور لے گیا تو وہ تھوڑی دور ہٹی۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ میں نے کہا تھا میرا آپ کے ساتھ اس طرح کا کوئی رشتہ نہیں ہوگا۔ دامل مسکرا کر کہنے لگا، یہ بیوی ہو تم میری اور آج ہماری سہاگ رات ہے نا، تو پھر اتنا تو حق رکھتا ہوں میں تمہارے ساتھ تھوڑا بہت ہی صحیح اپنی تذکیر حاصل کر سکوں۔ یہ کہہ کر اس کے قریب ہوتا چلا گیا۔ کہاں وہ 28 سال کا بھرپور جسامت رکھنے والا اور کہاں وہ 19 سال کی دبلی پتلی لڑکی۔ خود کو چڑوانے لگی، کہنے لگی، آپ اپنی باتوں سے نہیں پھر سکتے۔ دامل خانزادہ ہنس کر کہنے لگا، اچھا تم مجھے روکو گی؟ کیسے روکو گی؟ تم مجھے اپنی نازک کلائی چھڑوا نہیں سکتی۔ اس کی گردن پر اپنے لب رکھ چکا تھا، ایک کرنٹ سا لگا اس کے وجود میں سرایت کرتا گیا، مگر اسے خود کو دور کرنے لگی۔ آنکھوں میں آنسو ملانے لگے، کہنے لگی، میں چلانا شروع کر دوں گی اگر آپ نے مزید حد پار کی تو۔ میں جا کر آپ کی دادی کو سارا سچ بتا دوں گی، آپ نے مجھ سے کانٹریکٹ کیا ہے اور کچھ عرصے میں ہی مجھے طلاق دیں گی۔ جیسے اس نے یہ بات کی دامل فوراً اس سے پیچھے ہٹا، ایک نگاہ اس پر ڈال کر غصے سے کہنے لگا، تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، خبردار اگر میری دادی کو کچھ ہوا تو میں تمہارا حشر کر دوں گا۔ تم اپنی شکل پہچاننے لائق نہیں رہو گی۔ اب تمہارے ساتھ نرمی برت رہا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں تم مجھے نیچ اور گرا ہوا سمجھ لو۔ دامل کو غصے میں دیکھ کر کہنے لگی، لگتا تو یہی ہے، آپ جیسے امیر کبیر بزنس مین کے اندر سے اتنے ہی ٹھرکی ہیں۔ دوبارہ اگر آپ نے میرے ساتھ کچھ بھی کرنے کی کوشش کی تو دیکھیے گا، میں ساری سچائی جا کر آپ کی دادی کو بتا دوں گی۔ دادی کے نام کی دھمکی سن کر دامل اس سے دور ہو چکا تھا، لیکن اس کے اندر کے جذبات اندر ہی رہ گئے۔ اس نے کمبل اٹھایا اور اپنا سر جھٹک کر صوفے پر سو چکی تھی۔ دامل کچھ دیر اسے غصے سے دیکھتا رہا، پھر چینج کر کے وہ بھی سو گیا۔ بار بار اس کے اندر کی بے چینی سے چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ اس کی تیوی اس وقت اس کے کمرے میں موجود تھی اور وہ چاہ کر بھی اس سے سیراب نہیں ہو سکتا تھا، خود کو اس کے وجود سے تسکین نہیں دے سکتا تھا۔ ساری رات اس کی یوں ہی گزر چکی تھی۔ اگلی صبح اس نے اٹھنے سے پہلے ہی کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ اپنے ہاتھوں سے اس نے دادی کے لیے کھانا تیار کیا تھا، انہیں دوا دے دی اور وہ دیکھ کر یہ بہت خوش تھی۔ چند روز میں ہی اس کا اور دادی کا اچھی بات چیت ہو چکی تھی۔ دادی سے اپنے پاس بٹھا کر اپنے زمانے کے پرانے قصے سناتی اور وہ دلچسپی سے سنا کرتی۔ دامل یہ دیکھ کر خوش تھا، اس گھر میں واقعی اس لڑکی کے آنے سے رونق آ چکی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ذائقہ بھی بہت تھا۔ اس شام جب رفاقت اور اس کی ماں فرزانہ دونوں ملنے کے لیے آئے تو رفاقت تو اتنے بڑے گھر کو دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ جب اس کی ماں اور دادی باتیں کر رہی تھی تو وہ نشا کو ایک طرف لے گیا، کہنے لگا، اتنی امیر کبیر گھر میں تو راج کر رہی ہے، سے اتنا نہیں ہوا کہ اتنے بڑے گھر میں اپنی ماں اور باپ کو بھی رکھ لے۔ اپنے شوہر کو کہہ ہمیں بھی اس گھر میں رکھے، ہم سے نہیں اس چھوٹی سی گلی محلے میں رہا جاتا نہیں۔ نشا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، کہنے لگی، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں ابا؟ یہ سسرال ہے میرا، میری کیا عزت رہے گی اگر میں ایسا کہوں گی؟ آپ کو ماہانہ رقم دے تو رہے ہیں، 20 سے زیادہ، اور میں کیا کروں؟ رفاقت نے یہ سنا تو اسے بازو سے پکڑ چکا تھا، کہنے لگا، بس زیادہ پٹر پٹر مت کر، اتنے بڑے گھر میں اکیلی راج کر رہی ہے، ہم وہاں ان پیسوں سے دال سبزیاں کھا رہے ہیں۔ اپنے شوہر کو کہے مجھے پیسے دے، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، 5 لاکھ روپیہ سیدھا سیدھا میرے ہاتھ پہ رکھ، ورنہ تیری ماں میرے پاس ویسے بھی اکیلی ہوتی ہے، ایک پائی کے لیے محتاج ہے، میں اس کا حشر کر دوں گا، پانی بھی نہیں مانگنے پائے گی۔ پہلے باپ کی بات سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے، وہ گہری سانس خارج کر کے کہنے لگی، میں اپنے شوہر سے ایسا کچھ نہیں کہوں گی، میں مزید اپنا آپ اپنے شوہر کی نظر میں نہیں گرا سکتی، آپ کو جو بھی کہنا ہے آپ ان سے خود کہہ لیں، لیکن میں ان سے اس سب باتوں میں شامل نہیں ہوں گی۔ رفاقت اس کا بازو پکڑ کر اسے کھینچ رہا تھا جب وہاں پر دابل آ گیا۔ دابل نے جب رفاقت کو یوں کرتے دیکھا، اس کے پاتے پر پڑ چکے تھے، گلا کھنکارا اور کہنے لگا کہ انکل خیریت تو ہے؟ آپ میری بیوی کے ساتھ اس قدر سختی کا مظاہرہ کیوں کر رہی ہے؟
रफाकत फौरन हड़बड़ा सा गया, फिर कहने लगा, कुछ नहीं, बैठा बैठा बस इससे बात कर रहा था कि जिम्मेदारी यहाँ पर ठीक से निभा रही है या नहीं। अपना बाजू से हिलाती निशा फौरन पीछे हटकर खड़ी हुई, जब रफाकत खुद ही कहने लगा, बेटा वो तुम जानते हो हम गरीब छोटे लोग हैं, इनकी माँ के इलाज के लिए बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं। डॉक्टर का कहना है इसे दिल की बीमारी है, अगर जल्दी से ऑपरेशन ना किया तो इसकी जान को खतरा है, इसलिए अगर हो सके तो वही 4-5 लाख रुपए तुम दे देते। निशा को लगा कि अभी ज़मीन पर टेक और वो इस पे धंस जाए। वो अपनी चेहरा बोल चुकी थी जब अगले ही पल नाबिल कहने लगा, इसमें फिक्रमंदी की क्या बात, आप मुझे बताएं, मैं खुद हॉस्पिटल्स में मुफ्त इलाज करवा रहा हूँ, तो लोगों की मदद करता हूँ, मैं आंटी का इलाज भी मुफ्त करवा देता हूँ, बताइए कौन से हॉस्पिटल से करवाना चाहते हैं। आप ये सुनकर रफाकत थोड़ा हड़बड़ा सा गया था, जबकि अपने बाप की यूं लाजवाब होता देख वो वहां से कमरे में चली गई और फूट फूट कर रोने लगी। कुछ देर बाद के माँ बाप वहां से चले गए थे। जाने से पहले नाबिल ने कुछ रकम भी अपनी सास के हवाले की थी। जब वो वापस आया तो गुमसुम से बैठी निशा को देखकर कहने लगा, ये क्या बात है निशा, रो क्यों रही हो? अपना चेहरा हाथों में छुपाए रोते हुए कहने लगी, मुझे माफ़ कर दे, मैंने आज तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, अपनी मेहनत का ही मुआवजा लिया, लेकिन मेरा सुतेला बाप, ये कहते हुए वो कुल्ली किताब बनी दामिन के सामने सब कुछ कहती चली गई। दामिन इसकी हर एक बात सुनकर खामोशी से इसके सामने बैठा इसका चेहरा देख रहा था। मुझे इसे अपने नहीं सिर्फ तस्कीन का सामान समझता था और इस मौके की तलाश में था कि किसी भी तरह वो इस लड़की का फ़ायदा उठा सके। इसे रोता देखकर इसकी सोच अक्सर बदल चुकी थी। वो इसके पास बैठा इसका सर पकड़कर अपने कंधे से टिका लिया। वो कितनी ही देर रोते हुए अपनी बाजी की तकलीफ को बयान कर रही थी, मगर जैसे ही इसे एहसास हुआ फौरन अपना सर ताबिल के कंधे से हटा चुकी थी। वो धीरे धीरे नाबिल का रवैया इसके साथ बदलने लगा था। वो अब नाबिल के साथ तारबल रहने लगी थी। दादी जब इन्हें छोटी मोटी रोक-टोक करते देखती तो इनके दिल में ये ख्वाहिश उमड़ने लगती, न जाने कब ये दोनों इन्हें खुशखबरी सुनाएंगे। एक शाम इन्होंने नाबिल का कमरा सुहागरात के सेज की तरह सजवाया था और नाबिल को अपने पास बुलाकर कहा था कि मुझे अब हर हाल में खुशखबरी चाहिए। मैं अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ बहुत कम देखी है। जवानी में ही तुम्हारे माँ बाप मुझे छोड़कर चले गए थे। मेरी सारी ख्वाहिशात, सारे अरमान तो इनके साथ ही ख़त्म हो गए। मैं बस मरने से पहले तुम्हारी औलाद को अपनी गोद में खिलाना चाहती हूँ। अपनी दादी की बात सुनकर नाबिल की भी आंखों में एक चमक सी उभरी थी। इसने मुस्कुराकर दादी के हाथों को थामा, फिर कहने लगा, फिक्र मत कीजिए दादी, दुआ कीजिए, बहुत जल्द वही होगा जो आप चाहती हैं। ये कहकर वो कमरे में आया था। इस पल दिशा भी कमरे में दाखिल थी। कमरे को यूं ही खूबसूरती के साथ सजा देखकर वो हड़बड़ा सी गई, मगर नाबिल इसे अपने हसार में लेकर इसके बालों को कानों के पीछे उड़सने लगा। कहने लगा, आज की रात मैं तुम्हारे साथ सुहाग रात मनाऊंगा, मेरी दादी को बच्चा चाहिए। निशा की आंखें पहले से ज्यादा खुल चुकी थी। खुद को इसके हसार से छुड़ाते हुए कहने लगी, दादी को बच्चा चाहिए, आप इन्हें ला कर दे, मुझे तंग ना करें प्लीज़, मैं आपके कॉन्ट्रैक्ट पर लाई हुई हूँ। वो इसे खींचकर मजीद अपने करीब कर चुका था। कहने लगा कि आप भले कॉन्ट्रैक्ट पर लाई हो, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट पे ही शामिल था कि मेरी दादी का ख्याल रखोगी। अब दादी की ही ख्वाहिश है कि इन्हें पोता चाहिए। ये कहकर वो इसे अपनी गोद में उठा चुका था। वो अपने अल्फाज से इसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नाबिल तो इसके हुस्न पे डूबता इसकी गर्दन पे खोता चला जा रहा था। हड़बड़ाते हुए वो इसको अपने हिसार से छुड़वा रही थी कि नाबिल ऐसा मत करे, मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती, आप मेरी ज़िंदगी पर बात कर रहे हैं। वो तो बेकाबू सा हो चुका था, इसके हसार में अपने आप से सबा रहा था, खुद को इसके रहमो करम पर छोड़ भी देती, लेकिन जैसे ही ये बात जहन में आई कि वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर इसके साथ है, तो एक झटके से इससे जुदा हुई। मगर इसकी सारी मुज़ाहमतें दब तोड़ गई और नाबिल खानज़ादा इसके लबों को बकीत करते इस पर अपनी शिद्दतें मारने लगा। एक वक्त ऐसा भी आया था जब इसने सारी मज़ाहमतें करना बंद कर दी, क्योंकि वो नाबिल की हो चुकी थी। सारी रात वो इस पर शिद्दतें लुटाता रहा और वो इसकी शिद्दत को सहते हुए आंखों से आंसू बहाती रह गई। ये खौफ इसके दिल में पनप चुका था, कहीं नाबिल इससे बच्चा पैदा करवाकर इसे तलाक ना देते। वो तो इसे ये भी नहीं कह सकती थी कि इससे मोहब्बत करती है। अगली सुबह जब इसकी आँख खुली तो वो अभी भी नाबिल के अंसार में ही थी। खुद को इसके अंसार से छुड़वा कर निकली और सीधा वाशरूम चली गई। तब तक नाबिल की भी आँख खुल चुकी थी। इसे अपने सामने यूं निखरा निखरा देखकर एक बार इसे अपने करीब लाना चाहा, लेकिन वो फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, आपने मुझे अपनी तस्कीन की खातिर इस्तेमाल कर लिया। अगर मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करने के बाद किसी और से शादी करूँगी तो क्या होगा? जानते हैं मेरे किरदार पर कैसे कैसे अल्फाज उठेंगे। इसके किसी और का
इसके साथ इस किसी और का नाम सुनकर दाबिल इसे गर्दन से दबोच कर दीवार से लगा चुका था। आंखों में एकदम से गुस्सा उमड़ आया। थोड़ी देर पहले जो मोहब्बत उभरी थी वो सारी खत्म हो गई। वो गर्दन से दबोच कर कहने लगा, क्या बकवास कर रही हो तुम? होश में तो हो? अब तुम सिर्फ और सिर्फ दाबिल खानजादा की हो, समझी? किसी और का नाम लेने पर शुक्र मनाओ अभी तक मैंने तुम्हारी ज़बान काट कर नहीं फेंकी। इसकी आंखों में ऐसी तड़प देखकर वो खुद को इससे चढ़वाने लगी। कहने लगी, क्यों? सच्ची तो कह रही हूँ, पैसों की वजह से तो लाए हैं आप। आपने मुझे, मेरे बाप को मेरी कीमत अदा करते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ किराए की लड़की हूँ मैं आपकी ज़िंदगी में, और किराए की लड़की की यही औकात है मेरी आपकी ज़िंदगी में। बस गुस्सा किस बात का दामिल जो अब तक जब्त किए हुए था? कहने लगा, शट अप, जस्ट शट अप। बीवी हो तुम मेरी, मोहब्बत करता हूँ तुमसे। दामिल खानदादा का नज़रिया तुम्हें लेकर बदल चुका था। वो तुम्हारे बगैर एक लम्हा भी नहीं रह सकता। फिर तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और तुम किसी और के साथ दिल कर रहा है? अभी तुम्हारे दिमाग में फायर मार दूं जहाँ पर तुमने ऐसी गलत बात सोची, और वो अभी तक इससे सिर्फ बिगड़ा हुआ एक नवाब ज़्यादा समझ रही थी। इसके मुंह से मोहब्बत का इकरार सुनकर अंदर ही अंदर वो मुतमईन सी हो चुकी थी। एक गहरी सांस खारिज करके दामिल को देखने लगी। कहने लगी, आप सच कह रहे हैं? क्या सच में आपको मुझसे मोहब्बत है? आप मुझे कभी छोड़ेंगे तो नहीं? दामिल कहने लगा, हाँ दामिल खानदादा तुमसे मोहब्बत करने लगा है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। पहले के हालात और थे लेकिन अब और है। ये सुनकर निशा ने यही शर्त रखी कि अच्छा अगर ये बात है तो आप आज के बाद मेरे वालिद को पैसे देना बंद कर दें, वरना मुझे लगेगा कि आप मेरी कीमत अदा कर रहे हैं। नाबिल मान चुका था। धीरे धीरे इसके दिल में भी बहुत मोहब्बत की खोपले फूटने लगी। इस रोज़ वो दादी के साथ बैठी थी, इनसे बातें कर रही थी, जब आज अचानक दरवाज़ा खुला और एक इंग्लिश लहजे में उर्दू बोलने वाली लड़की दाखिल हुई। दादी जान कैसी है आप? सरप्राइज जैसे ही निशा ने इस जानिब देखा, टाइट जीन्स और चुस्त शर्ट में बाल खोले एक लड़की भागती हुई आई और आकर दादी के सीने से लगी। दादी भी इसे देखकर फौरन से प्यार करने लगी थी। कौन थी ये लड़की? देखने में बिल्कुल किसी फिल्मी हीरोइन जैसी लग रही थी। सर से लेकर पाँव तक इसे देखने के बाद वो परेशान सी खड़ी थी। जब दादी कहने लगी, बेटा ये मेरे हस्बैंड की बेटी है जिसे मैं अपना मुंह बोला बेटा कहती हूँ। इसकी औलाद भी मुझे अपनी औलाद जैसी अजीज है, और ये इसकी इकलौती बेटी अनुषा है। इसने निशा से थोड़ी हकारत नुमा अंदाज में सलाम किया था, फिर कहने लगी, ये लड़की कौन है? आपके सर से लेकर पैर तक वो निशा को देखने लगी जिसने सादगी से शलवार कमीज और दुपट्टा ले रखा था। दादी अगले पल मुस्कुरा कर कहने लगी, अरे लड़की, ये मेरी बहू है, मेरे दामिल की बीवी। माशाल्लाह से बहुत सुघड़ और अच्छी बच्ची है। मैं तो इसे अपनी बहू बनाकर निहाल हो चुकी हूँ। जैसे ही ये अल्फाज इसने सुने, इसके हाथों में मौजूद चंद गिलासेस नीचे गिर गए। इसका मुंह कुल्ले का कुल्ला रह चुका था। कहने लगी, ये क्या कह रही है दादी? ये लड़की दामिल की बीवी? ये तो कहीं से भी दामिल की शायानी शान नहीं है। दामिल के तो ख्वाब बहुत ऊंचे थे, वो तो खूबसूरत लड़कियों को भाव नहीं देता था। आखिर बहन जी टाइप लड़की में इसने ऐसा क्या देख लिया जो इससे शादी कर ली? निशा को अपनी बेइज्जती महसूस हुई जब दादी कहने लगी, अनुषा बेटा बुरी बात है, मैं तुम्हें अपनी बहू की यूँ इंसल्ट करने का हक नहीं देती। हर एक का अपना रहन सहन का तरीका है और ये अपने मजहब और माशरती रवायात पर कायम है। मेरे लिए ये इज्जतदार है। और ये सुनकर अनुषा खामोश हो गई। लेकिन निशा खुद को नजर भर कर आईने में देखा था। चुटिया में बंधे हुए बाल, सादा सा लिबास, वो भी इस घर की पालक होने के बजाय यह आपसी लड़की लग रही थी। जब शाम को तामिल घर आया तो अगले ही पल वो भागती हुई दाबिल के पास गई और इसके गले लग गई। निशा तो अंदर तक जल भुन चुकी थी। दाबिल इस अफ्ताब के लिए तैयार नहीं था। अलबत्ता इसने जवाबी तौर पर इसके कंधों पर हाथ नहीं रखा था। वो फौरन इसके गले लगकर कहने लगी, कितने बदल गए हो तुम दाबिल, 2 सालों में क्या से क्या हो गया? और वो अब भी इसके गर्दन के पास हाथ रखे हुए इसके करीब थी और चोर नज़र से निशा को देख रही थी कि क्या वो जज्बात रखती है। फौरन खुद को वो गैर महसूस तरीके से अनुषा से दूर करते हुए कहने लगा, तुम कब आई और मुझे बता दिया होता, मैं तुम्हें एयरपोर्ट खुद पिक करने के लिए आ जाता। वो अगले पल इसका हाथ पकड़कर कहने लगी, नहीं मैं तो तुम्हें और दादी को सरप्राइज देना चाहती थी। अगर पहले बता देती तो कहाँ ये मुस्कुराहट देखने को मिलती। जहाँ पर जाकर दाबिल बैठा था वो इसके साथ जुड़कर बैठ चुकी थी। निशा घूर घूर कर ये मंजर देख रही थी। दादी की तरफ देखने लगी। दादी इस वक्त अनुषा से ही बात करने में मसरूफ थी। वो तीनों में एक अलग ही फर्क महसूस हो रही थी। इन तीनों को यूं हंसता बोलता देखकर इसने कुछ कहना चाहा, लेकिन फिर अपने कमरे में चली गई। आंखों से मुसलसल आंसू रवा होने लगे थे। दाबिल के खोने का उसको डर लाहक हो गया कि कहीं वो इससे दाबिल को छीन न ले। जब खाना खाने के लिए सब बैठे तो इतनी आयली खाने देखकर वो कहने लगी, जानते तो हो तुम मैं इतने ऑयली वाले खाने नहीं खाती, मुझे तो पास्ता पसंद है। तुम अपनी बीवी से कहो ना मेरे लिए पास्ता बना दे। दाबिल ने भी अनुषा की बात सुनकर निशा से कहा, जाओ इसके लिए पास्ता बना कर ले आओ। वो खाने से उठकर जा चुकी थी।
जब वो इसके लिए पास्ता बनाकर लाई तो वो अगले पल इसमें नुक्स निकाल चुकी थी। ये कैसा पास्ता है? ऐसे लग रहा है जैसे किसी पेडू ने बनाया हो। अनुषा वो पास्ता खा भी रही थी और बार बार अपना सर दाबिल के कंधे पर भी रख रही थी। निशा ने जब ये मंजर देखा तो बगैर खाए कमरे में भाग आई। अब तो वो ताबिल का इंतजार खाने के टेबल पर किया करती। बाज दफा इसे आने में देर तक 12 पे बज जाते थे, फिर भी वो तभी खाना खाती जब ताबिल घर आता था। आज ताबिल की इस हरकत पर वो घुटने में सर दिए आंसू बहा रही थी। जब दरवाज़ा खुला जल्दी से अपने आंसू साफ करके इसने खुद को कंफर्टर में लपेट लिया, लेकिन ताबिल इसकी जेलिसी को समझ चुका था। अंदर ही अंदर मुस्कुराता हुआ हाथ में खाने की ट्राली इसके सामने आकर बैठ गया। इसे उठाकर कहने लगा, चलो खाना खा लो, जानता हूँ तुम भूखी हो। कहने लगी, आपने तो पेट भर कर खा लिया ना, मैं खाऊं या भूखी रहूं, आपको इससे क्या? आपकी अनुषी आ गई है, जाए इसके साथ इंजॉय करें। आप इसके आपका हाथ पकड़ रही थी और कभी आपके गले लग रही थी। इसको क्या पूछते हैं कि मेरा हक पर डाका क्यों डालती है? वो जिस अंदाज से सताते हुए ये सब बोल रही थी, ताबिल की खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। अगले पल मुस्कुरा कर इसने निशा को अपने सीने से लगाया, इसे बिल्कुल अपने करीब करता अपने हाथों के नवाले बनाकर खिलाने लगा। जिसे पहली दफा मना कर रही हो, लेकिन इसके बार बार कहने पर इसे जबरदस्ती खाना पड़ा। वो इसे खाना खिला भी रहा था और साथ साथ ये भी कह रहा था, ताबिल खानजादा अपने जज्बात का इतना कच्चा नहीं जो किसी भी लड़की के सामने पिघल जाए। तुम वही हो जिसके दिल चुप नाबिल के दिल की हुक्मरान है, समझी? बात रही अनुषा की, तुम देखती जाओ आगे आगे होता क्या है। अगले रोज वो किचन में शेल्फ साफ कर रही थी जब अनुषा वहां पर पड़ी टोकरी से फल उठाकर खाने लगी। वहां बैठते हुए एक नजर निशा को देखकर मखसूस आवाज निकाल कर कहा, बहुत अफसोस हो रहा है तुम्हारी किस्मत पर, हालत तुम्हारी गाँव वाली मासियों जैसी है। कौन कहेगा तुम नाबिल की बीवी हो, नौकरों की तरह हर वक्त घर के काम में लगी रहती हो। ये सुनकर निशा धीमी सी मुस्कुराई, कहने लगी, ये मेरा घर है, नाबिल खानजादा की बीवी हूँ। मैं चाहे नौकरों से काम करवाऊँ या खुद नौकरों की तरह काम करूँ, इस घर की एक एक चीज़ मेरी दस्तरस में है। किसी बाहर की आई मेहमान को ये हक नहीं देती वो मुझे यूँ तनकीद का निशाना बजाए। मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वही करूँगी और ज़्यादा बकबक करने वालों को जवाब भी दे सकती हूँ। अनुषा ने जब इसका यूँ टेढ़ा सा जवाब सुना तो इसके माथे पर बल पड़ चुके थे। आगे बढ़कर कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये निशा खान ज़्यादा के साथ जबान चलाने की? मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। एक तो तुमने मेरे दाबिल पर कब्जा कर रखा है, न जाने कैसे तावीज़ गंदे करके मेरे दाबिल को काबू किया है। अब मेरे सामने जबान चलाती हो। इससे पहले कि वो निशा पर हाथ उठाती वहां दाबिल आ चुका था और इसने इसका हाथ पकड़ कर इसे वहां से बाहर निकाला। कहने लगा, ये क्या हरकत कर रही हो मुझे तुमसे इस तरह की उम्मीद नहीं थी। ये बीवी है मेरी और जिसे मेरी बीवी का एहतराम नहीं, मेरी नज़र में इसकी कोई इज्जत नहीं। बेहतर है तुम दोबारा मुझसे और मेरी बीवी से दूर रहो, वरना मुझसे कोई बुरा नहीं होगा। दादी से मिलने आई हो ना, दादी तक ही महदूद रहो। अनुषा ये सोच कर आई थी कि इस बार दामिल के साथ अपना ताल्लुक मजीद आगे तक लेकर जाएगी। दामिल से यूं सुनकर वो अगले ही रोज फ्लाइट पकड़कर वापस जा चुकी थी। इस शाम अचानक तिशा की तबीयत खराब होने लगी। जब वो इसे डॉक्टर के पास ले गया तो डॉक्टर ने एक खुशखबरी सुनाई, वो माँ बनने वाली है। दामिल की तो खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। वो ये सोच सोच कर खुश हो रहा था कि अब दादी की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी और उसका निशा के साथ ताल्लुक मजीद मजबूत हो जाएगा।